I'm great. So tell me, your full name is Sanjana Arora. Arora. Okay, let's Yeah. go. San- Okay. So, sir, how's lockdown been? Okay, Sanjana, lockdown could have been worse. Okay. Lockdown could have been frustrating. Lockdown could have been, in many ways, I reason to grumble every day. But I think that once the moment we realize the gravity of the situation, you just have to focus your head and reset your head and say, you may be traveling. I used to do almost 3 or 4 flights a week. Travel abroad at least twice or thrice within the country. Every other day, people at the airport used to make fun of me. Airline staff used to make fun of me. They used to tell me, you fly more than us. Okay. Okay. So, and so that changed for me, because when I used to sit at home earlier for a day also, I used to feel extremely nervous. Ye sab kya ho raha hai? Yes. Uh, when it happened, I realized that this is something you're going to adjust to very fast, or we'll get frustrated. So immediately, this is the call. This is what we got to do, and we have to find ways to get busy, to be occupied, to learn something new. There's a lot of problems for the rest of the world. Can we help in some small way? Can we contribute in some small way? We got to reach out to people and reach out to yourself and make sure that you're busy. That's all. So I have kept extremely busy in the lockdown. From morning I start actually. In the morning I teach. We'll talk about that at length later. In the evenings I do some program for students, or some sanstha or some place where people tell me, the people who are extremely depressed or extremely feeling low, so we have a conversation, we laugh, we joke, we try to take away the stress from people and tell people that this is not here forever. We will come out of this, and we should come out of it stronger. So I've kept busy. I have nothing to grumble about. Health has been up and down for a lot of people within the family, but everybody is going through that. Everybody. Yeah, one thing that you will miss about lockdown after everything will be back to normal. I think that's a good question. One thing I'll miss about the lockdown. I think I'll miss spending time. It should not sound bad what I'm saying, but I feel sometimes for people who have got a roof above their head and 3 square meals, I think the lockdown in many ways was a blessing. It rooted you, it humbled you. I will miss the special time that I have spent with my grandchildren, because I would have been flying all over the place and not seen this part of their lives. I would have not spent as much time with my mother. There are times I leave in the morning, I come back late at night. She's sleeping when I leave, and she's sleeping when I come back. When I'm out of the town, I don't see her for 2 days in a row, 3 days in a row, sometimes 20 days in a row. And here we can have morning chai together, we can have evening chai together, we can sit and we can read something to each other, or rather I read to her. So the special time I'm having with my mother, my grandchildren, and of course my wife and I do spend a lot of time with each other, with or without. In fact, during the lockdown, we seem to be so busy. I said, where are you? I'm busy. I'm doing this. I'm doing that. I said, we are busier during the lockdown for some reason. So spending time with the family, and I have a group of people that I meet every day. We've had, since we started, about 160 sessions now. Sonal, would it be 10 days since that 150 story came out? Yes, sir. Yes. So about almost 160 sessions every morning of the lockdown. I meet a group of people where I teach, and they are my special family. It's called Spiral Bound. Every morning we meet for 2 hours, and we have the most special time. And for everybody, we are like there for each other, for problems, for academic problems, learning problems, health problems, you name it. It's an emotional day every day, even though it's coming to it's an online classroom. But even in the online classroom, there's so much of bonding, and there's so much of love, and there's so much of help for each other. Each and every person in the class is helping out each other.
Sometimes one of our girls, she lives with her two parents and three grandparents. That's 5 senior people. Oh my God. Out of that, 4 of them had COVID in the house. She was alone. And I said, are you okay? Saying, so you know what? I think I've become a stronger girl. And I think it's so wonderful that people are looking at these things as a way to grow as human beings. Otherwise, you'll only be grumbling every morning. If there's someone is not well, so and so got COVID, somebody is on, all the bad news keeps coming. You can get extremely depressed, and a lot of people are going through that. A lot of people are going through a lot of depression because they are unsure. They're unsure of their careers. They're unsure financially what's going to happen to them. They are unsure and living in fear of their health. COVID has become a boogeyman, okay? Mujhe COVID ho jayega to kya hoga? So you've got to be strong and you've got to spread that strength to people. I'm sounding like an old man preaching, so I'm sorry. No. Okay. So are you back to work yet? No. Okay. Me too. I had a lot of opportunities to go back to work, especially start and things like that. Chota jo pehle ka kaam hai, we should do. But no, I just think I'm going to take it easy for another few days. Yeah, take it easy. What's the hurry? Yes. It's fine. It's fine. Yeah. Okay. I'm not. Work is sometimes किसी का काम अटक गया हो, then I'll go. But everybody says, "Oh, when will we go out to have to a restaurant?" What's the hurry? Oh, what's the hurry? I understand. I'm happy. Many people are lucky they can go to, a residence out of the city. I'm very happy if people do that. They need the change. I have not stepped out of the house since the 11th of March. I've not stepped out of the house. And honestly, you won't believe it. I don't feel it at all. I don't feel it at all. Whenever I have, something like this morning I was speaking to the students of KC and HR College. There were 3,000 students. Every day morning, I had that talk. And soon after that, I rolled into my class for 2 hours. I dress up and I go. कैसे लग रहा है मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं? ऐसे it doesn't. You have chained me. You can't chain me. You can chain me to the house. You can't change my mind and my imagination, right? Yes. So I don't feel too bad. I'm okay. I'm managing well. In fact, I'll miss lockdown, as you said. What will you miss in the lockdown? You asked a very sweet question. Yeah, it'll be like that. I will miss Spiral Bound. I will miss not spending more time with my grandkids. I will miss not spending more time with my mother. And I think that's beautiful. Yes. Sir, आपकी जर्नी हर किसी के लिए इंस्पिरेशनल है, नॉट ओनली फॉर एक्टर्स, हर यंगस्टर के लिए कोई एज नहीं होती कुछ भी स्टार्ट करने की, अपने पैशन को फॉलो करने की। ये आपने हमें एग्जांपल सेट कर दिया और सबको ये फॉलो करना चाहिए भी। तो हम आपकी जर्नी की बात करते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, जब आप अपनी मदर के साथ शॉप पर काम करते थे और उसके बाद होटल में भी आपने काम किया है। प्लीज उस फेज के बारे में कुछ बताइए अपने लाइफ के। मेरी जर्नी जो है ना अजीब है। आपने कहा लाइफ में लेट शुरुआत की, मतलब मैं सोचता नहीं कि ये लेट है, जल्दी है। मैंने 44 की उम्र में मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई थी, हिंदी कमर्शियल फिल्म। सब लोग बोले इतने लेट क्यों आए आप? बोला नहीं, मैं सही वक्त पे आया हूँ। एक्चुअली मैं उम्र में आता था तो कुछ और बन जाता था, मतलब शायद मेरा करियर इस जगह नहीं होती। मैंने कह रहा हूँ कि मैं बहुत कामयाब हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे और एक्टिंग सीखने को मिला थिएटर के अंदर, और मेरे ज्यादा साल निकल गए। अच्छा हो गया मेरे लिए एज एन एक्टर, मेरी ट्रेनिंग अच्छी हो गई उस दौरान। तो जब मैं दुकान पे था, मैं मेरी माँ के साथ दुकान चलाता था और वो भी ग्रेट था, वो भी अच्छे दिन थे।
अच्छा लगता था दुकान पे, मेहनत, पसीना मेरी। अच्छा देखिए, मैं जब दुकान पे जाता था तो मैं मेरी माँ को, आई हैड ऑलवेज सीन हर सिटिंग एट द शॉप। मेरे जन्म से मैं मेरी माँ को दुकान पे देखता था। एंड सो इट वाज नथिंग न्यू कि ये हमारी दुनिया थी, ये हमारा, दैट वाज आवर वर्ल्ड, राइट? Yeah. So I joined my mother at the shop. We used to do shift duty between the two of us. छोटा था तो उनके गोद पे बैठ के मैं काम करता था दुकान पे। The thing was, I've seen my mother sweat. इतना पसीना गिरता था ऐसे, because हमारी दुकान में, यहाँ पे हमारा दुकान और यहाँ पे भट्टी, जहाँ पे वेफर फ्राई होते थे। इतने बड़े तवे पे बड़ी भट्टी थी, and they used to fry the wafers and sell them. तो उसका जो मतलब, उसकी गर्मी जो थी, वो बाप था उसका, वो तो दम लेने को भारी पड़ता था। और पसीने, मेरी माँ के गर्दन पे ऐसे पसीने के रेले गिरते थे। और so that was nothing unusual. मुझे भी पसीने छूटते थे और कितने, it was a lovely life because there was work and it was satisfying. अपने बदन पे the body smelled of ghee and potatoes. जितने भी नहा लो, वो बू नहीं चली जाती थी, तो उसमें बहुत बुरा लगता था। हम लोग बाहर कहीं शादी वादी में जाते थे, मैं चेक करते रहता कुछ बदन। हाँ, that was beautiful. वहां से मैंने फोटोग्राफी, कितने साल प्रोफेशनल फोटोग्राफी किया मैंने। साथ फोटोग्राफी के दौरान थिएटर करने लगा, जो that was my love. Photography was a creative outlet for me. Theater was my actual love. तो मैं जब छोटा था, मुझे थिएटर करना था बस। तो when that happened, I found great happiness. बड़ी खुशी मिली थिएटर में। फिर थिएटर से किसी ने कहा चलो एक एक्सपेरिमेंटल पिक्चर बना दे। एक्सपेरिमेंटल पिक्चर से, वो जमाने में यूट्यूब भी नहीं था, लेकिन वो पिक्चर हमने बनाई, क्यों मुझे मालूम नहीं, कहाँ पे रिलीज होने वाली थी वो भी नहीं मालूम। वो टाइम पे डिजिटल तो मतलब सौतेला भाई था। डिजिटल में होता है। हम लोग नेशनल अवार्ड्स के लिए भेजे उस फिल्म को, तो बोला नहीं, डिजिटल है, नॉट अलाउड। सोचो हाउ टाइम चेंजेस। वो भी 20 साल से ज्यादा नहीं इस किस्से को, अभी की बात कर रहा हूँ मैं। Things are all great. Okay. तो सर आपने उसके बाद फिर एक आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले किया, जिससे सब आपको पहचानने लगे। एक्चुअली पहचानने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बिकॉज आप रियल लाइफ में थोड़े अलग लगते हैं और उस कैरेक्टर में आप बिल्कुल अलग लग रहे थे, डॉक्टर जे अस्थाना। आज भी वो मूवी कोई देखता है, उतनी ही हंसी आती है, उतना ही फ्रेश कंटेंट लगता है। उस टाइम पे ऐसा कुछ था भी नहीं। मैं छोटी थी, पर मुझे स्टिल याद है वो मूवी हमने 2 या 3 बार जाकर हॉल पर देखी थी। पर मैंने एक स्टोरी ये भी पढ़ी है कि वो स्टार्टिंग में वो मूवी एकदम से चली नहीं थी, तो वो क्या स्टोरी है सर? चली नहीं थी, कोई बनाने को, पैसे डालने को राजी नहीं थे, डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा गड़बड़ था। तो ये क्या पिक्चर है? डॉक्टर, ये एक गुंडा डॉक्टर बनना चाहता है, गुंडा कॉलेज जाना चाहता है। थोड़ा फारफेच लगता है कॉन्सेप्चुअली, अभी बोले गुंडा डॉक्टर बनना चाहता है, थोड़ा फारफेच लगता ना। तो लेकिन you see, it is stories like this that become, if you pull it off, they become iconic. Yes. तो लेकिन Raju Hirani had such a beautiful vision, and the story was all about heart and kindness. कि जब वो मैंने कहानी सुनी तो मैं पागल हो गया। मतलब पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी कहानी, जब मैंने वन लाइनर सुनी थी, गुंडा डॉक्टर बनना चाहता है, ये कोई कहानी हो गई। फिर मैंने, राजू ने जब नरेट किया, बोला ये इसमें कुछ है, इस कहानी में फीलिंग है, कुछ जेन्युइन है, ट्रूथ है, सच्चाई है इस कहानी में। एक जादू में जब भी देखो आदमी को कुछ होता है। आई गॉट इनटू द मूवी। पहले पिक्चर रिलीज हुई तो इतनी हिट नहीं हुई, कोई देखने नहीं गया था, इतने मल्टीप्लेक्स नहीं थे उस जमाने में। जो थिएटर्स होते थे 50%, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो कोई भी बेकार का बेकार पिक्चर भी हिट फुल हो जाता था। 50%।
बहुत बुरा लगा था। धीरे 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 जब लोगों को समझ में आया ये पिक्चर में कुछ है, कुछ Yes. कुछ, हाँ, तो लोग देखने गए। एक 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 औरत ने मुझे कहा, मैं जाके रात को मैं देखता था दुकान बंद करने के बाद, मैं दुकान का शटर डाउन करता था, फिर मैं जाके एक औरत की आवाज सुनी मैंने, ये मामो। अच्छा, मैं देखा रोड पे एक औरत बैठी, Okay. हाँ, अच्छी टोल में बहुत प्यार से बोला, मामू बहुत अच्छा काम किया तुमने। बोला हाउ स्वीट, बहुत अच्छा काम, बहुत पैसा कमाएंगे हम लोग। वैसे हम लोग का मतलब मैं ब्लैक में बेचती हूँ टिकट। बोला अच्छा, Oh my God. हमें सब समझ में आता है कौन सी पिक्चर चलेगी, कौन सी फेल हो जाएगी, थोड़ी स्लो उठेगी, लेकिन जब लोगों को पसंद आएगी नई पिक्चर देखते आते ही जाएंगे। जैसे आपने कहा 3 बार आपने हॉल में देखा, Yes. हाँ, और पिक्चर सडनली पिकअप हो गई, एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। Okay. तो सर इतना सब काम करने के बाद कब ऐसा मोमेंट आया जब लगा यस आई हैव अराइव्ड, आई हैव डन इट, कुछ मतलब अचीव कर लिया, कुछ लाइफ चेंजिंग हो गया है? आप फिर से ये सवाल दोहराइए, कब ऐसा लगा कि यस आई I'm now here, I have done it. कब ऐसा लगा कि अच्छा लाइफ अब चेंज हुई है? हैव अराइव्ड, Yeah. I'm here. संजना, Yes. I have never arrived. ऐसे सोचना ही नहीं चाहिए कि I have arrived. Arrived का मतलब क्या होता है? Arrived का मतलब होता है कि अब मैं बादशाह हो गया, अब मैं बैठ के दुनिया को देखूंगा और सबको बोलूंगा I have arrived. मैं सोचता ही नहीं कभी। आज भी मैं मेहनत, हाँ जी, Wrong use of word. नहीं, it's not a wrong use of word. I am trying to explain to you. It would be a wrong attitude to say I have arrived. Yes. Yes. Attitude is wrong. I have arrived. मैं अभी तक अपने को सोचता हूँ, मैं अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कोई चीज पे। Okay. मेहनत करता हूँ, arrived हो जाएगा तो अब ऐसे आदमी ऐसे बैठेगा। नहीं, लॉकडाउन में मैं सोचता हूँ चलो अभी रिटायर होने का टाइम आ गया, अब मेरी उम्र हो गई। Yeah. So you must never think you have arrived, even if you have become. Look at Mr. Bachchan, बाबा। Yes. तो जो मिस्टर बच्चन को देखो, मैं कभी मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ जब उनको देखता हूँ, उनका कोई फोटो देख रहा हूँ, सब लोग मास्क पहन के उनका हेयर बना रहे हैं। I cannot, one sec, I just cannot imagine the man with his अभी कोरोना वायरस कोविड होके हॉस्पिटल में जाके, हॉस्पिटल से बाहर आके केबीसी अनाउंस्ड। Yes. कभी सोचते नहीं कि आई हैव अराइव्ड, थोड़ा आराम कर लेते। ही इज बिजियर देन एवरीबॉडी। ये कैसे? मतलब मैंने उनके साथ काम किया, मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मैं उनके साथ मैंने काम किया। वही लास्ट मैंने उनके साथ पिक्चर में काम किया था, वो भूतनाथ। बैठे हम लोग बातें कर रहे, उनकी नजर कहीं और है, सुन रहे, हंस रहे। एडी आके जब बोलता है सर शॉट इज रेडी, मैं उनकी बात सुन रहा हूं और उनके कान एडी के ऊपर है, शॉट इज रेडी, ड्रैग करके निकल गए। ही इज रेडी। जाके धूप में 33 डिग्रीज टेम्परेचर में, हीट में, ही इज डूइंग अ डांस। मतलब मैं परेशान हो जाता हूं। देख what energy he's got। आपने गुलाबो सिताबो देखी? Yes, yes. मैं देखते रह गया कि ये इंसान ऐसे चल रहे वो पिक्चर में। Yeah. हाँ, वो उनको I know as an actor I can tell how much effort has gone into that. Number one, that stance and वो चलने का तरीका, उनका जो फेस और बात करने का तरीका, आवाज को चेंज करने का, आवाज भी चेंज करे तो आदमी थक जाता है ना, just by the way। Yes. ऐसे करो आप थक जाएगी। और फिर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कितने घंटे का मेकअप हो गया रहेगा इनका सुबह सुबह, वो मेकअप लगाते लगाते। कभी बोलते नहीं कि मैं थक गया और यार आई एम अराइव्ड। कोविड के बाद मैं देख रहा हूँ सब लोग उनका आई डोंट अंडरस्टैंड, द मैन इज सो अमेजिंग। Yes, he is.
just amazing. तो हम we just have to keep working. When you cannot work, if you feel you are right, Yeah. you feel मतलब दिल्ली बहुत दूर है, बहुत काम करना है, तो you will keep working. ओके सर, ये बात मैं आपकी हमेशा याद रखूंगी, पक्का। आपने मुझे एकदम, मैं क्या, जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी एडवाइस थी सर। थैंक यू सो मच इतना सिखाने के लिए हमें। और अब क्या हम बिल्कुल बोला मतलब ऐसा एटीट्यूड नहीं रखेंगे। अच्छा ऐसे सॉरी, मैं आई डिडंट मीन टू कॉन्ट्रडिक्ट, आई वाज मेकिंग अ पॉइंट संजना। नो, इट्स ओके, इट्स ओके। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपके साथ कभी ऐसा होगा, फैन मूवमेंट्स होते हैं, कभी वियर्ड होते हैं, कभी थोड़े एम्बैरेसिंग होते हैं, कभी थोड़े फनी भी होते हैं, ऐसा कोई फैन मूवमेंट जो आपको याद रहे? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं। एक आया मेरे पास, बोला इरफान वारसी, मुझे बोला था इरफान वारसी, हाँ। और सबके साथ यू मस्ट लाफ इट ऑफ, यू नो। एक टाइम किसी ने बोला ये पिक्चर में आपने जो काम किया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सामने बैठा सब लोग सुन रहे, बिल्कुल अच्छा नहीं। ओके सॉरी यार, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कौन सी पिक्चर की बात कर रहा है। तो पिक्चर का कोई नाम दिया जिसमें मैं हूं ही नहीं। बुराई की मेरी उसमें पिक्चर के लिए। ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारे किस्से होते हैं। लेकिन फैंस आर वेरी डियर टू मी। I think they are very dear to me. I don't like to use the word fans, you know, Sanjana. I think that when a fan approaches, कभी-कभी कोई बहुत सारे ऐसे फैंस हैं, खास करके बच्चे, बहुत सारे फैंस they come, सेल्फी लेते, स्माइल करते, फोटो। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने जिंदगी में देखा है बहुत शाय होते, बहुत शाय होते। कॉन्फिडेंस कभी-कभी किसी का लो होता है, और मैं सबको नोटिस करता हूं। तो बच्चे को जा बात कर, तो बोला नहीं आई एम फीलिंग शाय, मतलब जा बात कर। अगर वो बच्चा आया बोला आई एम सॉरी, अगर मैंने वो बच्चे को बोला आई एम सॉरी, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आई ऑलवेज try to understand the confidence of a human being. It's very important, especially children. I used to lack confidence when I was a child. जब मैं छोटा था, अगर मुझे कोई क्लास में सवाल, मैं जब छोटा था, बाद में तो मैं पागल हो गया था। क्लास में कोई सवाल पूछे और मैं देख रहा हूँ कि बस मुझे प्लीज सवाल मत पूछना, मुझे आंसर मालूम है, जवाब मालूम है, लेकिन बोलने को डर लग रहा है मुझे। Lot of people have that fear. तो सामने आने के लिए you have to always consider that there are some fans who will be shy, but they come because they love you. Yeah. They come, they care for you because they respect you. And so I have a great loving relationship with my fans who approach me. Okay, sir. सर हमने आपको थिएटर्स में देखा है, मूवीज में भी देख लिया है, अब डिजिटल स्पेस में हम आपको कब देखेंगे, एक फुल फ्लेज वेब सीरीज? देखेंगे संजना। अब मैं मेरी खुद की फिल्म बनाने की कोशिश करूँ। मैंने एक फिल्म लिखी है, पूरा स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है, बहुत मेहनत की इस पे। अब उसका प्रोडक्शन आई होप जल्द से जल्द उसका शुरुआत हो जाए, नंबर 1। और डिजिटल OTT पे भी एक्टिंग होता है। स्टेज पे करो, डिजिटल पे करो, बड़े पर्दे पे करो, एक्टिंग इज एक्टिंग। आप इवन यू क्रिएट अ कैरेक्टर, एड फिल्म के लिए एक कैरेक्टर बनता है, तो कैरेक्टर, हाउ डू यू डेवलप अ कैरेक्टर, आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू डेवलप अ कैरेक्टर। तो मैं डिजिटल में कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं तो आ जाऊंगा। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, पहले मैं मेरी पिक्चर बना लूं, मेरी ख्वाहिश है बचपन पिक्चर बनाने के लिए। ओके, तो सर नेक्स्ट आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। 83 के बारे में तो हमें पता है जो पोस्टपोन हो गई है, और उसके अलावा हम आपको कहाँ देखेंगे? हो गई संजना 83 कब तक पोस्टपोन हो गई आपको? हाँ सर
ऐसा कुछ आई नहीं है इन्फॉर्मेशन, बट अच्छा, मुझे लगा कि आपको डेट मिला और मुझे मालूम, नो but नो I'm नो कुछ नहीं। तो 83 में मैंने एक छोटा सा रोल किया एक्चुअली एज अ कमेंटेटर प्ले ऑफ द ग्रेट फारूक इंजीनियर। ही वाज इंडिया विकेट कीपर, वर्ल्ड 11 विकेट कीपर, बहुत ही फेमस विकेट कीपर थे 60s एंड 70s में। और आई एम प्लेइंग हिम बिकॉज ही वाज द ओनली इंडियन कमेंटेटर इन द बीबीसी बॉक्स। तो मैं उनका रोल कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जयेश भाई जोरदार करके एक पिक्चर में हमने थैंकफुली कंप्लीट हो गई, थोड़ी डबिंग बाकी रह गई। जयेश भाई जोरदार रणवीर के साथ, हमारे जो बहुत ही यंग डायरेक्टर है दिव्यांग ठक्कर, उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, बहुत ही टॉपिकल कहानी है और ब्यूटीफुली वेरी 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 ब्यूटीफुली मेड फिल्म शॉट इन गुजरात, वो भी तैयार है। उसके बाद मैं मेरी फिल्म पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखते क्या होता है। अच्छी जाएगी सर, ऑल द बेस्ट और जल्दी बने आपकी फिल्म, ज्यादा हमें वेट ना करना पड़े और थिएटर्स भी जल्दी खुले ताकि हम आपकी मूवीज देख सके थिएटर्स में। थिएटर जल्दी खुले। हमारी देखिए इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं। बहुत सारे लोग हैं, इवन इफ दे आर नॉट डेली वेजेस, इवन हेयर ड्रेसर्स एंड हेयर स्टाइलिस्ट्स एंड स्पॉट बॉयज एंड लाइट बॉयज एंड कितने ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में है जो डिपेंडेंट है ये थिएटर्स के ऊपर। ये थिएटर खुल जाए, रिलीजेस की शुरुआत हो जाए तो सब काम पे लग जाए। और बस मेरी ये दुआ है सबके लिए मेरी दुआ है कि एवरीबॉडी गेट्स देयर रोजी रोटी मिल जाए, फैमिलीज को तकलीफ नहीं, एजुकेशन की शुरुआत हो जाए, और क्या। तो बस आपने बहुत ही अच्छा कहा कि थिएटर्स खुल जाए बस। Okay. Sir, do you have any memories of Mayapuri? आप बिलीव नहीं करेगी, पहली बार मैंने जब मायापुरी का नाम सुना था, आप हंसेंगी तो नहीं? Yes, आप sir. हंसेंगी? No. मैंने रेडियो पे स्पॉट आया था मायापुरी। Okay. मायापुरी रेडियो पे आया था, पहले टीवी नहीं था ना। Yes. टीवी के आई थिंक मायापुरी मस्ट हैव स्टार्टेड व्हेन इन 1971। कब की, कितनी पुरानी है? Yes. 70s. 70s मैंने ऐसे ही बोला 70s में मायापुरी, नया मायापुरी। तो मैं बोला ये पिक्चर का नाम क्या है? मुझे लगा कि पिक्चर आ रही कोई मायापुरी, बिकॉज पिक्चर का सब रेडियो पे शोले, द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, अमजद, संजीव कपूर, फिर मायापुरी। तो बोला ये पिक्चर है, मुझे ऐसा लग रहा था कि पिक्चर है। और सब स्टार्स के नाम देते थे, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, डिम्पल कपाड़िया, अच्छा ऋषि कपूर। तो ये क्या स्टारकास्ट होगी इस पिक्चर की। डिम्पल कपाड़िया भी है, धर्मेंद्र भी है, राजेश खन्ना भी है, जितेंद्र भी है, धर्मेंद्र। आई थॉट कि मायापुरी वाज अ मूवी। फिर किसी को पूछूं कि मायापुरी कब रिलीज हो रही है, फिर मैं जाके स्टैंड पे देखा मायापुरी मैगजीन है। मायापुरी, आई थिंक वो मैगजीन पे हेमा जी थी। अच्छा ये है मायापुरी। और देन तो आई हैव हर्ड 70s मायापुरी के बारे में। Any message to your fans? ये एक और चीज बोल के, जब कभी मैंने सोचा नहीं था 70s में, जैसे कि मैंने ये इतनी बड़ी गलती की मायापुरी को गलत समझ के कि फिल्म थी, कि मैं आज मायापुरी के साथ एक इंटरव्यू करूंगा। Yes. तो मैसेज टू माय फैंस, I just say that theaters can open, the production can start, shooting can start, post production, pre production सब कुछ शुरू हो जाए, लेकिन वो थिएटर्स जो है वो फैंस से ही भरी जाती है। It's the fans who fill up the theaters. So without the fans, we are nobody. Yes. We are nobody. So I just want to tell you, thank you for your support. Not just to come and watch our movies, not कि मतलब एक business हो जाए, but कहीं भी जाओ, दुनिया में भी कहीं भी जाओ, the love you get from people you've never met and you'll never see again, and they love you for that. Yes. I feel blessed. Thank you for all your love.
Okay, thank you so much for this interview, sir. It's a pleasure to have you on Mayapuri Cut. And all the best to Jayesh Bhai Jordar and the movie जिस पे आप काम कर रहे हैं. All the best, sir. Thank you, Sanjana. Very sweet of you. Thank you God so much, sir. Thank you. Thank you, Thank Sanjana. you, sir. Thank you, sir. Thank you.